Today we will start our fourth chapter, that is the federalism in India. In this chapter we will discuss about the federalism, its features, center state relations and the recent trend. First, Indian federalism or Unitarian federalism. Article 1 of the Indian Constitution declares that India, that is Bharata, is a union of states, which clearly mentioned that India neither a federation nor a unitarian state. It is a union of states. It has been done because Indian Constitution has both federal as well as the unitarian or the centralistic characteristics. The Indian Constitution provides a Indian Constitution provides the federal structure with a strong center reflecting the Unitarian spirit. Therefore, Unitarian federalism has been the features of Indian polity. तो आज आम डिस्कसन करवा फेडरालिज्म विषय से आम तार फीचर्स पढ़ा आउ सेंटर स्टेट रिलेशनशिप पढ़ा आउ रिसेंट ट्रेंड पढ़ा. तो आम जो कॉन्स्टिट्यूशन बा संविधान प्रथम आर्टिकल लिखाई प्रथम आर्टिकल डिक्लेयर कर इंडिया दैट इज भारत इज यूनियन ऑफ स्टेट. भारत हूँ गोटे राष्ट्र मानकर संघ. तो माने ये जो डिक्लेरेशन इंडिकेट करुच्ची इंडिया नाइदर इंडिया गोटे फेडरल स्टेट नुहे कि गोटे यूनिटरी स्टेट नुहे बा इंडिया क्षमतार स्ट्रिक्टली विकेंद्रीकरण होनी बा इंडिया क्षमतार स्ट्रिक्टली केंद्रीकरण भी होनी. यहाँ हूँ गोटे यूनियन ऑफ स्टेट राष्ट्र मानकर संघ. एटा एथि माने ए फीचर्स एथि अच्छी इंडिया रे कहीं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रे बोथ फेडरल स्ट्रक्चर आउ यूनिटेरियन स्ट्रक्चर भी अच्छी. तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया हूँ गोटे कौन से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आमको गोटे फेडरल स्ट्रक्चर सहित स्ट्रॉन्ग सेंटर भी देती जोटा कि रिफ्लेक्ट करुच्ची द यूनिटरी स्पिरिट ऑफ द स्टेट. से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आमको देती कौन यूनिटेरियन फेडरालिज्म. आम स्टेट केमितिया आम यूनिटेरियन फेडरालिज्म. यूनिटेरियन फेडरालिज्म कौन आमर माने पावर कौन विकेंद्रीकरण भी होती इनकेस किसी एमरजेंसी आसले सेंटर स्टेट उपरे तार कौन इम्पोर्टेंस जाहिर करि पारि. नेक्स्ट, फेडरल फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. फर्स्ट, डिवीजन ऑफ पावर. Like other federal constitution, the Constitution of India divide power between center and state. It divide all the subjects in three parts. First, Union List 97, now it is 98. It include first Union List 97 items, now it is 98. The union government exercise the power over the subject which include in the union list. It contains the subject of national importance like defense, armed force, foreign affair, war and peace, railway, shipping, currency, banking
and some other subject. Second, state subject जोटा कि 66 थिला एबे 59 हो जाइए. Those are contained in state list. Over these, all each state government legislate and administrate them in their own territory. The state list contains such subjects which require the local decision, like public order, police, prison, public health, forest, fishery, etc. And number 3, concurrent list. Concurrent subject. Concurrent subject contain 48 थिला एबे 52 हो जाइए. Subject over which both the center and state enjoy the power to legislate and administrate. It contains the subjects of shared interest both union and state, like criminal law, criminal policy, preventive detention act, marriage, divorce, trade union, and other. Beside these 3 exhaustive lists, the Constitution provides the residuary list for the center. Both center and state derive its power from the Constitution. They exercise their power as defined by the Constitution. Division of the power between center and state describe the federal characteristic of the Indian Constitution. तो हमारा फर्स्ट फीचर्स होची कौन डिविजन ऑफ पावर. तो कॉन्स्टिट्यूशन सेंटर और स्टेट भितर जो पावर गुड़ाक डिविजन करिछि. तो ये डिविजन तीन प्रकार. गोटे हूँ यूनियन लिस्ट जो थे कि 97 आइटम थिला एबे 98 हो जाइए, जहाँपर कि सेंटर ही माने एंजॉय करे पावर. माने से जो से आइटम पर सेंटर ही लॉ तैयारी कर पारे. से गुड़ाक हूँ आमर कौन कौन डिफेन्स, फॉरेस्ट अफेयर, फॉरेन अफेयर, वार एंड पीस, करेन्सी, बैंकिंग ए सबू. सेकेंड हूँ स्टेट सब्जेक्ट. स्टेट सब्जेक्ट रे आगु थिला हमर 66 आइटम, एटा 59 हो जाइए. तो स्टेट सब्जेक्ट उपरे सबू स्टेट निज निज एरिया बा निज निज स्पीयर रे से माने पावर एंजॉय करती स्टेट सब्जेक्ट उपर नियम तैयारी करने. तो से सब स्टेट सब्जेक्ट कौन स्टेट लिस्ट कौन कौन सब आसूँ जो गुड़ा कि लोकल डिसीजन उपर डिपेंड कर से गुड़ा सब आसे. जेमिति पुलिस, पब्लिक ऑर्डर, प्रिजन, पब्लिक हेल्थ, फॉरेस्ट इत्यादि. देन कनकरेंट लिस्ट. थर्ड लिस्ट हो कनकरेंट सब्जेक्ट. एगुड़ा सब कनकरेंट लिस्ट अच्छी. आगुरी एटा 48 आइटम थिला, एबे एटा 52 हो जाइए. आ कनकरेंट लिस्ट थिबा सब्जेक्ट उपरे बोथ सेंटर और स्टेट नियम तैयारी करि परिबे. तो कनकरेंट लिस्ट को सब्जेक्ट अच्छी जो सब्जेक्ट उपरे बोथ सेंटर और स्टेट रो इंटरेस्ट थिबो. तो से गुड़ा कौन कौन क्रिमिनल लॉ, आमर क्रिमिनल प्रोसीजर, प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट, मैरेज एंड डिवोर्स, ये सब उपर एगुड़ा सब हूँ कनकरेंट लिस्ट जाऊँगी जो जहाँ पर सेंटर और स्टेट समस्त इंटरेस्ट अच्छी. एथिपाई कनकरेंट लिस्ट थी सब्जेक्ट गुड़ाक सेंटर और स्टेट बोथ कैन बी लेजिस्लेट एंड एडमिनिस्टर द लॉ. तो सेंटर हो स्टेट हो समस्त कॉन्स्टिट्यूशन रु पावर आणती आ कॉन्स्टिट्यूशन प्रेस्क्राइब थिबा लॉ अनुसार ही पावर को यूज करती. ये जो डिविजन ऑफ पावर है बिटवीन सेंटर एंड स्टेट दैट इंडिकेट द फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. हाँ
आमर यूनियन स्टेट आ कनकरेंट लिस्ट व्यतीत गोटे रिजिडुअरी लिस्ट अच्छी जहाँ ऊपर केवल सेंटर ही लॉ तैयारी करिपरिबो। सेकेंड फीचर्स इज डुअल एडमिनिस्ट्रेशन। India establishes the dual politics. Each citizens of India is subjected to dual administration. The state in which he reside and the central administration. He participate in the election of both the state and center. He obeys both the center as well as the state law. He pays taxes for both the government. Both the government provide service to them. तो डुअल एडमिनिस्ट्रेशन कौन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आमको डुअल पॉलिटिक्स देछि। डुअल पॉलिटिक्स कौन डुअल पॉलिटिक्स रे जन सिटीजन माने इंडिया प्रत्येक नागरिक से माने सेंटर भी नागरिक और स्टेट रे भी से सेंट्रल इलेक्शन में भाग नियंती स्टेट इलेक्शन में भाग नियंती से सेंट्रल लॉ मानिया बाध्य स्टेट लॉ मानिया बाध्य जो स्टेट से मैंने रहउचंती सेमिति सेंटर पाई भी टैक्स दिए आउ स्टेट पाई भी टैक्स दिए। सिमिलरली बोथ द गवर्नमेंट सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट समस्त को कौन सर्विस भी जोगाती सेंटर भी सर्विस दिए ता सिटीजन को स्टेट भी दिए। दैट इज डुअल एडमिनिस्ट्रेशन। Number 3, written constitution. India has a written constitution which clearly lays down the division of the power between the center and state. It clearly defines the scope of power of the union and the federal unit. In its part XI and XII, Article 245 to 300, it clearly discusses the legislative, administrative, and financial power between center and state. Demarcation of the limits between the two has been done clearly and in detail. तो रिटिन कॉन्स्टिट्यूशन तुम जान इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन रिटिन जो लिखित जोटा कि क्लीयरली डिस्कस करची कौन सेंटर स्टेट रिलेशंस डिवीजन ऑफ पावर क्लीयरली डिस्कस करिची आउ एटा माने कॉन्स्टिट्यूशन भी क्लीयरली डिफाइन करची द स्कोप ऑफ पावर सेंटर ऑफ पावर केते स्टेट पावर केते क्लीयरली डिस्कस करिची। सेमिति हमर पार्ट 11 और 12 रे डिस्कस हेची हम सेंटर स्टेट लेजिस्लेटिव एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल रिलेशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट और तार लिमिटेशन कोन भी क्लीयरली डिस्कशन हेची। Discussed 4. Supremacy of the Constitution. Number 4, supremacy of the Constitution. Both the union and state government derive their power from the Constitution. They exercise their power in accordance to the provision of the Constitution. The Constitution of India is supreme and no one can violate it. The Supreme Court has the power to protect and interpret it. The supremacy of Constitution कौन आम यूनियन और स्टेट सब गवर्नमेंट पावर कॉन्स्टिट्यूशन ठू नियंती और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन अनुसार से माने यूज करती तो कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन को भायोलेट करें कॉन्स्टिट्यूशन एगेंस्ट जापरेनि आउ आम जो उच्च न्यायालय अच्छी उच्चतम न्यायालय अच्छी सुप्रीम कोर्ट हूँ कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्शन दिए इंटरप्रेट भी करे। Number 5, rigidity of the Constitution in respect of the federal features. The Constitution of India lays down a special procedure of amendment of the Constitution, particularly in the respect of the amendment of federal features like
The provision covering the union-state relations. It provides for a very rigid methods of amendment. It lays down, firstly, the amendment proposal is to be passed by each house of parliament by a majority of it lays down, firstly, the amendment proposal is to be passed by each house of union parliament individually by the majority of total membership and 2/3 majority of the member present and voting. And secondly, the amendment bill so passed by the parliament are sent to the state legislature for consent. It become an act with the concurrent of at least half of the state legislature. It is indeed a rigid method of amendment. तो 5 होची कॉन्स्टिट्यूशन रो रिजिड मेथड अछि का ऊपर द फेडरल फीचर्स ऊपर. तो जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बा इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन गोटे स्पेशल प्रोविजन फॉलो करूची कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट पई पर्टिकुलरली आम जोटा फेडरल फीचर्स अछि बा यूनियन स्टेट रिलेशन ऊपर जो अमेंडमेंट थाए ताकू अमेंडमेंट करिया पई गोटे बहुत स्ट्रांग प्रोसीजर से फॉलो करूची. कौन से प्रोसीजरटा फास्ट गोटे अमेंडमेंट प्रपोजल पार्लियामेंट जेकोसी गृह रे गृहीत हबो सेटा माने प्रति गृह इंडिविजुअली मेजॉरिटी वोट रे पास करिवे और 2/3 मेजॉरिटी वोट रे ताको माने साइन करी पठेबे तापर सेटा जीव स्टेट लेजिस्लेचर को जदि स्टेट माने मोर देन हाफ स्टेट लेजिस्लेचर ताको माने रेक्टिफाई कर ताहले से बिलटा पास हो पारिबो जोटा कि गोटे बड़ रिजिड मेथड बहुत कष्टकर काम एटा. Number 6, special role of judiciary. The Constitution of India provides an independent judiciary with the Supreme Court as at its head. The Supreme Court has the power to settle the dispute arise between the center and state as well as among the states. It is the final interpreter of the Constitution. It judges the constitutional validity of the law both the center and the state, and in case a law found in case a law or some part of law found unconstitutional, it can be reject this law. तो आमर कॉन्स्टिट्यूशन आमको कौन देछि आउ माने आउ गोटे फेडरल फीचर्स आउ गोटे बड़ फीचर्स कौन स्पेशल रोल ऑफ जुडिशियरी बा जुडिशियरी गोटे स्वतंत्र रोल अच्छी. तो आम कॉन्स्टिट्यूशन गोटे इंडिपेंडेंट जुडिशियरी बा स्वाधीन न्यायिक व्यवस्था प्रणयन करछि जार हेड होछि सुप्रीम कोर्ट. सुप्रीम कोर्ट पाखे पावर अच्छी कौन से जदि के डिस्प्यूट हुए बोथ बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट से डिस्प्यूट को से सेटल करे. और जब स्टेट के भी डिस्प्यूट हुए सपोज कौन सी इंटरस्टेट वाटर हो फॉरेस्ट हो जो भी डिस्प्यूट हुए आम सुप्रीम कोर्ट स्टेट गुड़ाक सुप्रीम कोर्ट पाक जाती. सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करे आ जदि केते देखिले आम सुप्रीम कोर्ट भी सब जो लॉ सेंट्रल लॉ हो स्टेट लॉ हो सब लॉ रो कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को टेस्ट करे. जदि कौन सी लॉ बा कौन से गोटे लॉ रो कौन से पार्ट कॉन्स्टिट्यूशनली इनवैलिड देखा गला बा कॉन्स्टिट्यूशन को वायोलेट कला ताल सुप्रीम कोर्ट चाहिए से लॉ को से रिजेक्ट करि पारिबो. 7, bicameral union parliament. The bicameral legislature is again considered a major features of the federalism in India. In such a legislature, the upper house represents the units of the
of the Federation. The Indian Constitution, which provides the bicameral legislature, the Rajya Sabha is the upper house and the Lok Sabha is the lower house. The Rajya Sabha represents the interest of the states of the Indian Union. Its members are elected by all the state legislative assembly. The Rajya Sabha represents the interest of the state in the national level, and the Lok Sabha represents the interest of the people of the Indian Union. The bicameral legislature बा दुई सदनीय व्यवस्थापिका तो यहाँ भी गोटे माने स्ट्रंग फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म जेहेतु इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आमको बाइकैमराल लेजिस्लेचर देइछि तो आमर कौन कौन अच्छे माने बाइकैमराल लेजिस्लेचर कौन कौन अच्छे लोकसभा और राज्यसभा हूँ अपर हाउस जोटा कि इंडियन स्टेट इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करुच्ची ठीक से भाई लोकसभा हूँ लोअर हाउस जे कि इंडियन पीपुल इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करुच्ची आउ राज्यसभाटा माने राज्यसभार मेंबर माने सबू स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली विधानसभा मेंबर मान द्वारा निर्वाचित होती किंतु लोकसभार मेंबर माने आम द्वारा डायरेक्टली निर्वाचित होती कहीं लोकसभा मेंबर माने आम को डायरेक्टली रिप्रेजेंट करते से all the features indicate the federal structure or federal character of Indian Constitution.